So we are starting with a new chapter, that is evolution, which is chapter number 7 of class 12 biology. This chapter is also very important for examination point of view and for NEET point of view also. बट दिस चैप्टर सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स. जैसे कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर को प्रेजेंट किया गया है ना, कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स दिए गए हैं रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैनर में बताई गई हैं. तो वो लगती तो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उसमें हमने क्या करना है, कुछ स्क्रूटनिंग करेंगे हम उसमें से, इस चैप्टर में से कि इन व्हाट मैनर वी आर गोइंग टू लर्न दैम. क्रैमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन फॉर दिस चैप्टर. क्रैमिंग भी इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली ए लिटिल अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर. अगर थोड़ा सा भी ये चैप्टर हमें समझ आ जाए ना, तो इसको लर्न करना कोई मुश्किल काम नहीं है. जैसे कि स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत बोर लगता है और कॉम्प्लेक्स भी लगता है, बट ऐसा है नहीं है. तो आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू explain this chapter in a very simple manner and in an interesting manner also. ठीक है, तो we are going to start right now. What is evolution? तो first of all we should know what is meant by evolutionary biology. It is the study of history of life forms which are present on this earth. जितनी भी histories हैं, life forms हैं, उन सब की study किस में आती है? Evolutionary biology में आती है. ठीक है, and what is an evolution or evolution? It is a process in which there is a little modification, or we can, it is a process of continuous, irreversible and slow changes of the life forms that are occurring on this earth. Along with there is a more adaptations of organisms towards the complex changing environmental conditions, more complexities of structures or organs of the organisms, and moreover we can say with more efficiency of work is there. If all these three things are considered, only then we can say there is evolution on this earth. Merely by asking that evolution is a process in which simple organisms, they are becoming complex. Simple organisms are becoming complex is not a real answer for the organic or is this evolution. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये evolution क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहा है and what we are going to study in this chapter. तो first of all we should write the definition. Evolution is a process, it is a process of continuous, slow and irreversible change. Irreversible changes in organisms present on this earth. And what does it include? It includes first of all what I can say adaptation of organisms. Adaptation of organisms towards environment, towards changing environment. जैसे जैसे यूनिवर्स के बाद लाइफ स्टार्ट हुई, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए और ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडेप्ट किया उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली. तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स दे वर अडेप्टिंग टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट. कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट जो भी चेंज आ रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंगली दे वर अडेप्टिंग देमसेल्व्स. वो अपने आप को क्या कर रहे थे? अडेप्ट कर रहे थे. And moreover, what was there? There was complexity or modification of organs. Complexity or modification of organs. Modification of organs were also there. This is also a part of organic evolution, not a merely we can say कि complexity of organs or organisms from simple to complex form. ये real meaning नहीं है. बहुत सारी चीजें, it is one part of the evolution. ये evolution का एक part है और पूरा का पूरा evolution इसके basis पे हम नहीं represent कर सकते. Everything we have to include, in which we have to include the adaptation of organisms, in which we have to include the complexity of organisms, and third, more efficiency of work.
efficiency of organisms towards their work, so that they are able to adapt or so that they are able to survive on this earth. So efficiency of work is also there. ठीक है? And it includes all the flora. Evolution is occurring in all the flora and fauna. I mean to say जितने भी plants हैं और animals हैं या all the life forms, उन सब में क्या हो रहा है? Evolution is taking place and it is a dynamic process, not a static one. ठीक है? Evolution is going on. चला आ रहा है और स्टार्टिंग से, और since it was started from the previous time और initially when the life was started on this earth, तब से evolution धीरे धीरे चला आ रहा है. ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे including evolution is including all the flora and fauna. Clear? Right? So this is also a part in which evolution we have to study in plants में और animals में. जितने भी life यहाँ पे इस अर्थ पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट है, उन सब में कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, दैट वी हैव टू स्टडी. टर्म इवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट स्पेंसर वाज अ साइंटिस्ट who coined the term evolution. Means it is a Latin word. Evolution क्या है? एक Latin word है and its meaning is to unfold. Latin word, और इसका क्या meaning है? Unfold और unraveling of life. Unfolding यानी कि जो भी लाइफ की मिस्ट्री है, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इवॉल्व हुई, कैसे मॉडिफाई हुई, उन सबको अनफोल्ड करना. एंड ऑल दिस कम्स अंडर इवोल्यूशन. तो किस में हम पढ़ेंगे? वो इवोल्यूशन में, अनफोल्डिंग ऑफ लाइफ. हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको नेम दिया था. चार्ल्स डार्विन जो फेमस नेचुरलिस्ट है, जिसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की थी, रखी थी, he told the evolution as a process of descent with modification. सारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. जितनी भी नई फॉर्म्स है वो प्रीवियस से मॉडिफाई हो रही हैं बाय ऑल मीन्स. तो इसीलिए इवोल्यूशन को नाम दिया डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड ही बेटर कॉल्ड इट एज एन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ऑर्गेनिक क्यों बोलती हैं? इट इज रिलेटेड टू द लिविंग बींग्स. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन्स एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लिविंग बींग्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑल दे आर ऑर्गेनिक. तो लाइफ फॉर्म्स जितनी भी हैं उन सब में कार्बन मिलती है, तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें. क्लियर? तो चार्ल्स डार्विन ने इसको नाम दिया डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. So evolution के अंदर what we are going to study, first of all we should know about our universe. Universe क्या है? And how the origin of universe was there? That means Big Bang theory जो जिससे कि आप familiar हो, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे. What is a Big Bang theory? ठीक है? Origin of universe by Big Bang theory. This is Big Bang theory that we are going to study. Then how the origin of earth was there, or solar system. Nebula theory. Origin of solar system. इसके बारे में ब्रीफ देखेंगे, जितना कि एनसीईआरटी में है उससे ज़्यादा नहीं हम करेंगे. ठीक है? एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी origin of earth. And then origin of life. जो ब्रॉड टॉपिक्स है ना, ब्रॉडर टर्म्स हैं दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. लाइफ के ओरिजिन के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ना हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा, एज बहुत कम दिया गया है लाइफ का. फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, और वी कैन से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और लाइफ के बाद इवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स का कैसे हुआ, व्हाट आर वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग इट, व्हाट आर वेरियस एविडेंसेस, एंड इन व्हाट मैनर इवोल्यूशन ऑकर्ड इन प्लांट्स एंड इन व्हाट मैनर इवोल्यूशन ऑकर्स इन एनिमल्स, what were various stages that were present in between this evolutionary process. And lastly we are going to study
evolution of man. Clear? Evolution of man. So these aspects we are to study. First of all, we should start with what is a universe. So our universe में पहले हम जाने क्या present है. Is having near about कितनी galaxies हैं? 10 raised to the power 5 million of galaxies are present. Galaxies क्या होता है? Group of stars which are present in our solar system, and our earth is also a part of a galaxy, that is Milky Way. Clear? तो 10 raised to the power 5 million के आसपास galaxies हैं. 10 raised to the power 5 means near about 1 lakh millions की हम बात करें ना, तो इतने मिलियन गैलेक्सीज हैं. एंड गैलेक्सीज क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स. ये आप सबको मालूम ही है. गैलेक्सीज आर ग्रुप ऑफ स्टार्स. एंड सेकेंडली नियर अबाउट इफ वी वन गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में देखें तो कितने स्टार्स हैं? स्टीलर सिस्टम, और वी कैन से स्टार्स आर 10 raised to the power 4 million stars are there. ये तो यूनिवर्स की अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से यूनिवर्स में कैसे गैलेक्सीज प्रेजेंट है, इन व्हाट मैनर स्टार्स आर देयर. एंड नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट मिल्की वे गैलेक्सी, आवर गैलेक्सी जिसमें हम अर्थ, जिस पे लाइफ प्रेजेंट है. बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया. अब ये भी नहीं मालूम किस पे लाइफ है, किसी में नहीं है. हम कह सकते हैं अर्थ पे ही है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि वी आर मियरली अर्थ, आवर अर्थ इज ए मियरली ए स्पेक, एक छोटा सा बिंदु है इतने बड़े यूनिवर्स में. तो अपने आप ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी है यूनिवर्स और कितने मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. उन गैलेक्सीज के अंदर कितने मिलियन स्टार्स हैं, और स्टार्स के अपने प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स हैं. जैसे कि हमारा सन है ना, सोलर सिस्टम में मेन सन इज अ मेन स्टार अलोंग विद वेरियस स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जिसमें से अर्थ आती है. ठीक है, इज वन ऑफ द स्टार विच इज ऑफ अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ठीक है, और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. आई मीन टू से जो हमारी गैलेक्सी है ना, जिसमें अर्थ एक पार्ट है, दैट इज ए मिल्की वे गैलेक्सी, और उसको हम क्या बोल देते हैं? आकाश गंगा भी कहते हैं. ये सब भी हमने पढ़ा हुआ है. मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा स्पाइरल शेप है. अर्थ इज ए पार्ट, अर्थ इज ए प्लैनेट, एंड इसमें क्या है? सन इज प्रेजेंट इन द सेंटर, सन एंड इट्स प्लैनेट्स. सन इज मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, सन एंड इट्स प्लैनेट्स. देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स दे आर प्रेजेंट? 9 प्लैनेट्स हैं along with their own satellites. 9 प्लैनेट्स में अर्थ इज वन ऑफ देम. जैसे अर्थ है, और हम कह सकते हैं वीनस, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न एंड प्लूटो. अब प्लूटो को नहीं मानते. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 is missing. I should consult which one is missing, because this is a part of we can say is geography. Mercury I forgot, then I write the Mercury also. All of you must have learned in lower classes in geography वाला चैप्टर में. तो हमें तो ये एक बार से रिकॉल करना पड़ेगा. आपको भी ये पता होगा which is nearest and which is farthest. अर्थ में एक ही सैटेलाइट है, मून, नेचुरल सैटेलाइट है विच इज हैविंग मून. बट इतना ही इनफ है, नहीं तो ज़्यादा ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट वी आई वांट टू टेल यू कि यूनिवर्स इतनी ज़्यादा फैली हुई है जिसमें अर्थ सीम्स टू बी ओनली मियरली ए स्पेक, एक छोटी सी बिंदी की तरह नजर आती है अर्थ. और अर्थ किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी इज ए स्पाइरल, इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल पाथवे विच इज हैविंग न्यूमरस 100 million ऑफ स्टार्स आर देयर इन मिल्की वे गैलेक्सी. बहुत सारे स्टार्स हैं, एंड सन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार जिसके चारों तरफ 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं.
सन के चारों तरफ, एंड these planets they are revolving along their own axis in an elliptical pathway. तो ये तो हो गया यूनिवर्स की एक मियरली डेफिनेशन, इससे ज़्यादा बढ़कर हमने नहीं करनी. तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये, what are various other terms that we should know about the universe.